Hello everyone, how are you all? Hoping you all are good. Let's start today's class. So in the previous class we have seen the steps of crop production. So today we are going to read in detail the first step. The first step was preparation of soil. Preparation of soils is the first step. So in this we have to read about two things. The first thing is loosening of soil, and second thing is mixing of soil. Okay, so in the preparation of soil we have to do two things. दो चीज़ें करनी होती है. पहली क्या, लूजनिंग ऑफ सॉइल करनी होती है और मिक्सिंग ऑफ सॉइल करनी होती है. ओके, तो इनको एक एक करके देखते हैं. पहला है लूजनिंग ऑफ सॉइल. और लूजनिंग ऑफ सॉइल का क्या मतलब है? लूजनिंग का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्लांट उगाया, यहाँ पे कोई क्रॉप उगाई और यहाँ पे उसकी रूट्स हैं और ये है सॉइल, राइट. सो दिस इज द सॉइल. सो व्हाट हैपन्स, लूजनिंग मीन्स कि जो सॉइल है इसके बीच में इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या हो, थोड़ी सी स्पेस हो, एयर हो. ओके, ये मतलब है लूजनिंग का. तो लूजनिंग हमें करनी क्यों है? हम क्यों चाहते हैं कि जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से लूज हो, उनके बीच में थोड़ी सी कैविटी हो, थोड़ा सा स्पेस हो, थोड़ी सी एयर हो. क्यों? बिकॉज जो हमारी सॉइल होती है इसमें कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर जस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते. ओके, वो हमें दिखते नहीं है ऐसी, पर ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो इस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड यू नो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप और द प्लांट. ओके, सो अगर लूजनिंग ऑफ सॉइल होगी, अगर स्पेस होगा सॉइल के बीच में, तो ये जो माइक्रोब्स है ना ये इजीली ग्रो कर पाएंगे. ओके, जब ये इजीली ग्रो कर पाएंगे तो ये हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन में इट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दिस, बिकॉज ऑफ द we want the microbes to grow, so we want the loosening of soil. And another thing is that we know that the soil, it contains some of the gases also. So if the soil will be loose, if there will be space, so the exchange of gases, it will take place easily. Okay, so the exchange of gases will take place easily if the soil is loose, if we have space between the soil particles. Okay, and one thing you have to see in this, you have studied in the 6th class about vermicomposting. So what is vermicomposting? In vermicomposting we add earthworms into the soil, and these earthworms, what they do, they help in the loosening of soil. For example, just imagine if there are some earthworms, right? So what they will do, this earthworm will move from here to here, it will move from here to here, right? So it will, when this has moved from here to here, so it will leave this space. You just see this space, it will leave this space over this space. So there the cavity will be produced, the space will be produced, and the loosening of the soil will take place due to these earthworms. Okay, and these earthworms are called as the friends of farmers. We all know that, friends of farmers. Okay, so this is the first thing, the loosening of soil. Okay, we need the loosening of soil so that the microbes, they can grow easily,
the exchange of gases can take place, and the earth forms, they help in the loosening of soil. Okay, now the second thing is the mixing of soil. The second thing is mixing of soil. Mixing of soil. Okay, so what is this? What is the meaning of mixing of soil? Okay, just imagine I have a box, I have some soil in it. एक डब्बा है, उसमें थोड़ी सॉइल है, तो मैं हाथ से उसको ऐसे मिलाती हूँ, तो क्या होगा, जब मैं ऐसे मिलाऊंगी तो जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे आ जाएगी, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे कोई क्रॉप था या प्लांट था, जो भी था, यहाँ पे सॉइल है। सो व्हेन द मिक्सिंग ऑफ द सॉइल विल हैपन ना, जब मिक्सिंग होगी सॉइल की, तो क्या होगा कि नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली सॉइल नीचे चली जाएगी। पर हम ये मिक्सिंग कर ही क्यों रहे हैं, हमें मिक्सिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सॉइल की पर्टिकुलर लेयर होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है, सिर्फ वही लेयर ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ओके, तो हमें पता है कि जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कंटेन करती है हमारी सॉइल। अभी जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं ये हमारे प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, जब हम मिक्सिंग ऑफ सॉइल करते हैं ना, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये इस लेयर तक आ जाते हैं, हमें ये इस लेयर तक पहुंचाने होते हैं, उस लेयर तक, वो टॉप लेयर होती है जो कि हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ओके, तो जब मिक्सिंग ऑफ सॉइल करते हैं तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो इस अपर लेयर तक पहुंच जाते हैं और वो हमारी क्रॉप की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। Okay, so this is the first step, the preparation of soil. It has two things, the loosening of soil and the mixing of soil. Okay, we have done the mixing of soil to to keep the nutrients and minerals to the top layer which support the growth. Okay, now for this, for loosening of soil and for the mixing of soil, we need some tools. ओके, कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मुझे कुछ टूल्स चाहिए, राइट। वाइट बोर्ड है, डस्टर है, दिस मार्कर है, सो दीज आर द टूल्स। सो फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड फॉर मिक्सिंग द सॉइल, वी ऑल्सो रिक्वायर सम टूल्स। ओके, सो द टूल्स हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देयर आर टू काइंड ऑफ टूल्स, और यू कैन से देयर आर टू kind of methods for preparation of soil. The first one is traditional method or traditional tools, traditional method or tool, and the second one is modern method, modern method or tool. Okay, now the traditional method or tool, it consists of a tool which you all must have heard, that is the plow. प्लो क्या होता है, हिंदी में हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। आपने मूवीज वगैरह में, है ना, पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा कि हल होता है। क्या होता है कि दो बैलें आगे होती है कनेक्टेड, और उससे एक वुड का एक चीज़ कनेक्टेड होती है, जिससे वो, मतलब आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो हल का यूज़ करते हैं ना। तो ये हम पढ़ेंगे कि हल जो प्लो होता है, इससे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होती है। और जो मॉडर्न मेथड है, इसमें हमारे दो आते हैं, एक आता है हो, ओके, एंड द सेकंड वन इज कल्टीवेटर। सेकंड वन इज द कल्टीवेटर, ठीक है। सो ये दीज टू आर द मॉडर्न टूल्स एंड दिस इज द ट्रेडिशनल टूल। ओके, सो ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो हमेशा से चला आ रहा है, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं पुराने टाइम से। और जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं, जो मॉडर्न टूल्स होते हैं, वो होते हैं जो अभी भी आए हैं, और वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं देन द ट्रेडिशनल टूल्स। ओके, सो लेट्स स्टडी द ट्रेडिशनल टूल फर्स्ट। ओके, नाउ द ट्रेडिशनल टूल is the plow. Okay, this is the plow. So just see the figure 1.1a of the NCERT. Okay, I'm just drawing a rough diagram here. So what does it
looks like it has a long rod kind of this, and curved rod like this. Okay, so the long one, this is known as the flow shaft. This is known as the flow shaft. Okay, so this long one is known as the flow shaft, and this curved one, this is known as the plowshare. Okay, so this is the flow shaft, this is the plowshare, this is the flow. Okay, so what happens, समझ लीजिए यहाँ पे दो बैल है, ठीक है, जस्ट इमेजिन. ओके, सो दो बैल हैं, तो क्या होता है कि समझ लीजिए इनके सींग है. ओके, जस्ट सी द फिगर 1.1a. ओके, यू विल गेट अ बेटर पिक्चर. सो ये दो बैल है, क्या होता है कि इनके यहाँ पे ऐसे एक रॉड कनेक्टेड होती है, और यहाँ से एक रॉड कनेक्टेड होती है जो कि सॉइल में जा रही होती है. ओके, so this part, this the curved part, the plowshare, it is in the soil here. Okay, and this long one, this is the plow shaft. Okay, plow shaft, and this is the plowshare. And this rod is attached to the bulls. जो बैल के यहाँ पे अटैच होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीम. ओके, सो जैसे जो बैल होती हैं आगे आगे मूव करती रहती हैं, तो ये जो प्लोशेयर होता है ना, ये सॉइल को मिक्स करता जाता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल करता जाता है. ओके, सो दिस इज द ट्रेडिशनल टूल, द प्लो, हल इसको हम कहते हैं, यूज होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड मिक्सिंग ऑफ सॉइल के लिए. ओके, नाउ द सेकेंड इज द मॉडर्न टूल. द मॉडर्न टूल is of two types. Okay, so the modern tool is the hoe. It looks like a gun. Okay, just see the figure 1.1b of the NCERT. Okay, figure 1.1b of the NCERT. It looks like a gun type of structure. This. Okay, it has two beam over here. It has a bent plate. Okay, handle है ना, grip. Okay, so these two are called as the beam. This is called as the bent plate. Okay, this is the grip. GRIP grip. This is the handle. And this long thing, this is the rod. Okay, so this is a hoe which is used for the mixing of soil. What happens, this bend, this blade, when it goes into the soil, it mixes the soil. Okay, so this is the one of the modern method of preparation of soil. Okay, now the second method is the cultivator. Second modern method is the cultivator. So see the figure 1.1c of the NCERT. Okay, so what is a cultivator? Okay, just imagine there is a truck over here. Okay, or tractor, tractor. There is a tractor over here. एक ट्रैक्टर है. अब ट्रैक्टर के पीछे की साइड में ना एक इस टाइप का एक टूल यू कैन से कनेक्टेड होता है. उसमें ऐसे रॉड्स होती हैं, यहाँ पे रॉड्स होती हैं, यहाँ पे ऐसे. ओके, एंड ये वाले जो रॉड्स है ना, दिस हॉरिजॉन्टल वन, इनके यहाँ पे हुक टाइप का स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है, हाई टाइप की. ओके, जस्ट लाइक वी ड्रॉ दिस अ बिगर वन. There is a tractor. Okay, this is a tractor, and in the back side यहाँ पे
ये हमारा कल्टीवेटर है। Okay, these are the vertical rods, these are the horizontal rods, and to these horizontal rods इसके यहाँ पे क्या होता है, एक हुक साइड्स के अटैच होते हैं हर एक horizontal rod पे, यहाँ भी और यहाँ भी। सो क्या होता है, जब ये ट्रैक्टर आगे आगे मूव करता है, फर्दर मूव करता है, तो ये जो हुक्स है ना, ये सॉइल के, यहाँ पे सॉइल है तो ये सॉइल के अंदर अंदर होते हैं। ओके, सो जैसे से मूव करता है तो ये जो हुक्स हैं ये सॉइल को यहाँ पे मिक्स करते हुए चलते हैं। ओके, सो दिस होल थिंग, दिस इज कॉल्ड एज द कल्टीवेटर। ओके, दिस इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ मिक्सिंग द सॉइल। ओके, दिस इज cultivated. Okay, so we have seen the two things in preparation of soil, that is loosening of soil. Why we require that? Because of the, we want the microbes to grow, and because of the air easily exchange of gases. And the second thing is mixing of soil, and mixing of soil we do to reach the nutrients and minerals to the top layer. Okay, and we do this preparation of soil by using two methods. दो तरीके से करते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स के जरिए और मॉडर्न टूल्स के जरिए। ट्रेडिशनल टूल में हमारा प्लो आता है, जिसे हम हल कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और उसके हमने अभी देख लिया कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एंड द सेकेंड इज मॉडर्न मेथड, उसमें हमारे आते हैं क्या, हो एंड कल्टीवेटर। ओके, वो भी हमने देख लिया। एक बार एनसीईआरटी की बुक की जो फिगर्स हैं, सी दैट ऑल्सो, यू विल गेट अ बेटर पिक्चर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एंड द सेकेंड स्टेप was the sowing of seed. Okay, so we will we will study the second step in the next class. Till then, keep learning, and please do comment if you have any doubt or if you have any suggestion.